Hello and welcome. Ethics and politics. How things are related. This is the topic of essay I am going to discuss. The topic is politics without ethics will be a game of power. Politics without ethics will be a game of power. If this is the topic, how will you write your essay? What structure you will develop? And what will be the point of emphasis? I am going to discuss its logical structure. As you know, the content and other things will vary depending upon your background and everything. Let's start. First of all, you should include, as I always say, that you at the end, this is a visualization exercise. Means before you write an essay, you should visualize that what will be the plot, what will be the structure, how things will be developed. Means logical structure I am talking about. Something like a script writer. Get it? So the plot should be clear. And what will be the logical design of this thing I am going to discuss. So first part, that at the end we can visualize a very interesting introduction. But in body part, what will be the point? First, we should tell that what is meant by politics. First, we will write about this thing. Politics means what? Any endeavor for power is called politics. You know this thing. First you will write what do you mean by politics. Many people think that only politics is in by states and political party. No, even in family, even in classroom, even in organization, whatever you do to maximize your power in a given organization, or you can say social positions, that is a politics. Suppose you increase your knowledge and technical power to control other and influence other, that is politics. So politics have several instruments. Okay, so politics, what you meaning you should clear. What do you know? Endeavor for power. Power means you want to gain power. Nobody wants to lose power. You know this thing. Then what do you mean by ethics? You know this thing. Ethics, under ethics you will write the moral principles. I am suggesting you the structure that are based on moral values that help us to judge what is right and wrong. Getting? Okay. So now question is that politics without ethics will be a game of power. Now develop this thing. So politics without ethics, if you want to visualize the structure, you can take help of this thing, contrast, that politics with ethics, ethical politics, and then you can visualize politics without ethics. This contrast will help you to emphasize the meaning. If you tell this thing, this happens when there is ethics in politics, then for the same reason you can say if this thing will not be there, then so what happens when ethics is there in politics? See this thing. When you do politics with ethics, wherever you are, be it political party or in organization, suppose you want to control other, you want to maximize your power, then things will be one, that one thing is called means or ends. Which means you take, that decides your ethics. Then in order, obviously end is what? End is to gain power. But if you adopt ethical means, what Gandhi said that, what you understand? That not only the end, what you get is okay,
बट हाउ यू गेट दैट थिंग. पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बिजनेसमैन के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उस पैसे को आपने कैसे कमाया है ये सही और गलत हो सकता है ना. तो समथिंग लाइक दैट. पॉलिटिक्स क्या बुरा हो सकता है, लेकिन अगर अनएथिकल पॉलिटिक्स किया आपने, देन वी सी दैट वेदर यू अडॉप्ट while doing politics, whether you stick to the political principles or ethical principles, or you compromise ethical principles. This is the question. Politics with ethics agar hai, then what would happen? Very things you can say that सेवरल एग्जाम्पल्स यू कैन पुट इन हियर. मैं तो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ना, कि जैसे जहाँ भी एथिक्स पॉलिटिक्स होता है इधर हायर अपहोल्डिंग हायर ह्यूमन वैल्यूज. लाल बहादुर शास्त्री वॉज हैविंग एम्बेसडर कार, अभी BBC के डॉक्यूमेंट्री में दिया है, सुन सकते हो. एंड ही वॉज पेइंग EMI थ्रू सैलरी एंड ऑल दिस. सी आज एक पॉलिटिशियन, सिंपल पॉलिटिशियन के पास कितने पैसे होते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड दिस. डिसप्रोपोर्शनेट असेट्स आते हैं तब भी लोग जस्टिफाई करते हैं दिस थिंग. आई हैव पिक्ड अप जस्ट वन एग्जाम्पल. लाइकवाइज अटल बिहारी वाजपेयी वॉज टेलिंग दैट इवन द 13 days गवर्नमेंट फेल just by one vote. It was manageable, but he refused. तो आप कह सकते हैं कि it is a epitome of higher human values in politics. Politics में ethics को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो इन सब चीज़ों को जब आप करते हैं तो लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी बढ़ते हैं. लोग पसंद करते हैं पॉलिटिशियंस को. आपके दौर में आपको समझना है तो 50s के दौर के पॉलिटिशियन एंड उस दौर के या फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान के पॉलिटिशियंस को देखो, कितने लोग आइडेंटिफाई करते थे, उनके बीच का जो गैप कितना कम था. दे वांटेड टू बी लाइक दैट. कहते ना कि इनके जैसा हो जाना है, कोई कसमें खा सकता था, समथिंग लाइक दैट. I am not just referring to Mahatma Gandhi, I am referring to everyone, be it Gokhale or be it Lala Lajpat Rai or Bhagat Singh or anyone. So see this thing, that time the mass and leader, there were close communications, and moreover most important also that आइडेंटिफाइंग विद ईच अदर, एक दूसरे को पसंद भी करते थे एक जैसा, उनके बीच बहुत बड़ा गैप नहीं था. तो फ़ायदा क्या होता है, एक कूल सोसाइटी कह सकते हो. एंड वेयर एवर देर इज़ एथिक्स, व्हाट विल गो डाउन? करप्शंस, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन मनी, डेवलपमेंट विल बी मोर. तो लिमिटेड पैसे में इक्विटी लोगों को ज़्यादा मिलेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. आप कह सकते हो कि लोगों के बीच में जो हैप्पीनेस भी ज़्यादा होगा, है ना, ट्रस्ट ज़्यादा होगा, सिस्टम स्टेबल होगा. देयर आर मेनी बेनिफिट्स यू कैन काउंट हियर. अगर एथिकल प्रिंसिपल्स है तो एथिकल प्रिंसिपल्स आर व्हाट, दैट यू स्क्रूटनाइज की दैट हाउ यू आर डूइंग दिस थिंग, बिकॉज एथिकल प्रिंसिपल आर कॉमन इन पीपल. तो यूनिफॉर्मिटी एंड एक हायर ह्यूमन वैल्यूज़ बिहेवियर दिखने को मिलता था. हम आइडियल नहीं बोलते कि वहाँ पे करप्शन नहीं था, बट आई एम टेकिंग दैट इन कंपेरिजन कम था, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा था, है ना. ठीक है, अब जाकर इधर देखते, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी, दैट मोरल प्रिंसिपल विदाउट पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स. अब इसको देखते. Politics without ethics means, again, see means no concern for means. ये जो mean and end का जो डायलेमा है, मतलब कि फोकस जो है सारा का सारा जो है यहाँ पे आ जाता है.
कौटिल्य का एक था ना कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। बातचीत करो, दाम मतलब खरीद लो, दंड मतलब पनिश करो, और भेद मतलब फूड डाल के उसको मैनेज करो। दीज वर द क्लासिकल अप्रोच टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड गेन पावर। साम दाम दंड भेद से चीज़ों को करो, मतलब जो लगे जो करो। एंड पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर Machiavelli, he said that state should not be concerned about what people thinks about the morality. Individual morality should not be used to judge state actions. The best thing for a state is that what is good for a state is ethical. तो उसके स्टेट के हित में अगर वायलेंस करना हो, स्टेट के हित में अगर कुछ भी करना हो, तो अगर स्टेट के लिए अच्छा है तो ठीक है, उसके लिए आप मोरल इमोरल का डायलेमा नहीं लेना चाहिए। दिस वॉज द व्यू ऑफ निकोलो मैकियावेली, पॉलिटिकल फिलोसफर। कौटिल्य भी पॉलिटिकल फिलोसफर। अब जरा थोड़ा समझ के देखिए कि दैट when you do not bother about the ethics in politics, then what would happen? You will resort to everything, just quest for power. And now compare this thing with animal quest for power. देखा होगा दोनों जानवरों की लड़ाइयाँ कैसे होती, वाइल्ड होता है ना, तो ब्रूटल। तो ये जो अब मर्डर अब देख रहे हैं, जो एक दूसरे का एक्यूजेशंस, एक दूसरे के पर्सनल अटैक, एक कई आरोप लग रहा है ना कि ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ किसी को कुछ कर रहे हैं, तो कोई मोदी को गाली दे रहे हैं, कोई राहुल गांधी को गाली दे रहा है। मतलब यू कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट नो एनी कंसर्न फॉर व्हाट विल बी द मोरल, व्हाट शुड बी द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशंस इन पॉलिटिक्स। हम जो बात कर रहे हैं उसकी एक मर्यादा हो, इसका भी कुछ ध्यान नहीं है। तो ये सभी के लिए एक साइड से नहीं देख सकते आप इसको, है ना। तो मेंस और एंड में द पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स विल बी व्हाट, दैट फोकस, जस्ट फोकस ऑन एंड। अब सवाल है कि एंड पे फोकस करने में बुराई क्या है। बट व्हेन यू डू नॉट फॉलो एथिक्स एंड यू डू नॉट शो कंसर्न फॉर मीन्स एंड यू आर फोकस्ड ऑन एंड, चलो आप डेवलपमेंट के लिए पैसा खूब कमा रहे, देन व्हाट वुड हैपन, यू विल नॉट बी माइंडफुल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पैसे तो खूब आ गए, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं है। Disparity will be more and you will not be concerned about that because you have given up ethics. So why you will be concerned about equality, equity, gender equality, poor and rich divide, ये सब आपके दिमाग में आएगा ही क्यों? So the politics that will be there, but a wild politics. It will not be like human politics, जो हम लोग जिस कारण से human कहते हैं अपने को, क्या डिफरेंस? The difference is that एनिमल वर्क्स ऑन इंस्टिंक्ट, एग्रेशन उनमें भी होता है, आप में भी होता है, आप ग्रीड उनमें भी है, आप में भी है, सब कुछ तो है। बट द पावर टू कंट्रोल एंड टू अपहोल्ड द मोरल वैल्यूज डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम एनिमल। तो हम कहते हैं कि हम ह्यूमन हैं, हम उसके जैसा नहीं। और तब जो हमारा स्टेट है, सोसाइटी है, उसमें जो पॉलिटिक्स होता है, सो नॉट ओनली द पावरफुल but those who are powerless would also survive. Try to understand this thing. वो भी survive कर रहा है। Natural inequalities तो हो, but we do not use natural inequality to justify social inequality. है ना, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, हम किसी को रिजर्वेशन दे के भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटी राइट देते हैं। क्यों देते हैं? अगर पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कंसर्न शो करना एथिकल पॉइंट, एथिक्स तो होता ही है पॉलिटिक्स में। अगर आप नहीं करें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालिसिस करें, आप देखेंगे कि जो ये माइनॉरिटी राइट वगैरह जो आपने दिया है वो लॉजिकल भी है और एथिकल भी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो एथिक्स होने का जो हम फ़ायदा क्या है पॉलिटिक्स में, कि पॉलिटिक्स की एक मर्यादा, एक रिस्पेक्ट बना रहता है माइंड में, तो हम जानवर होने से बचते हैं। वी डू नॉट रिसेट टू एनिमल।
है ना, नीचे नहीं चले जाते। तो जब एथिक्स होगा तो वहाँ गरीब भी सरवाइव करेगा, उनका भी ख्याल है, विमेन एम्पावरमेंट है, डेवलपमेंट पे फोकस है, जस्टिस पे फोकस है, सब कुछ है। केवल एंड मतलब पावर फॉर द सेक ऑफ पावर, किस लिए पावर? तो फिर एथिकल चीज़ें सरवाइव भी ज़्यादा करती। आप देख लो, जो एथिक्स इन कंपेरिजन मुगल डायनेस्टी में ही देख लेते हैं कि अकबर देखो थोड़ा रिलेटिवली एथिकल था, तो उसकी डायनेस्टी और उसका जो इम्प्रेशन है उसके लोग, और औरंगजेब और बाकी लोगों को देख लो, उनका डायनेस्टी, उनके लोग कैसे सरवाइव किया, क्या लेगेसी रहा, क्या इम्पैक्ट रहा लोगों में, क्या कैरी किया उस चीज़ को, आप समझ सकते हो ना। तो ये हमेशा है कि जो एथिकल रहे हैं वो स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। एथिकल होना और कमज़ोर होना में अंतर है, ध्यान रखना, डोंट बी एथिकल होना और कमज़ोर होने में अंतर है। तो ये नहीं कहा जाए एथिकल होने का मतलब कि आप सब कुछ छोड़ दो। जैसे अशोका के बारे में लगता है कि भाई उन्होंने नॉन वायलेंस लिया तो शायद एक डिक्लाइन का बहुत बड़ा कारण ये बना होगा उनका। हम ये नहीं कर रहे, केवल स्टेट के लिए कुछ चीज़ें जस्टिफाई हो सकती है। जैसे कि अगर हम इन दोनों को ले लिया, अगर आप जब पूरा डिस्कशन करेंगे, आप कंटेंट नहीं बोलो, मैं स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ, केवल ये सब मेन पॉइंट आएगा। देन एक आएगा कि जैसे इन तब सॉल्यूशन क्या है इसका। प्योर एथिक्स भी नहीं हो सकता और प्योर प्रैक्टिकलिटी भी नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस में, प्रिंसिपल प्लस प्रैक्टिकलिटी में जो अगर हम देखें तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए। इट इज़ समथिंग लाइक दैट 24 कैरेट गोल्ड यू कैन नॉट मेक एनी ऑर्नामेंट बिकॉज यू कैन नॉट मोल्ड दैट थिंग प्रॉपरली। दैट इज़ अ गोल्ड। You need to add something that is not gold in few percent, for example 2. तो 22 कैरेट गोल्ड आप उससे आभूषण बना सकते हो, ऑर्नामेंट बना सकते हो उससे, है ना, लेकिन प्योर गोल्ड से नहीं बन सकता। वैसे ही समझ लो कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकलिटी का वो रख के आप चीज़ों को चला सकते हो। लेकिन ऐसा हो जाए कि 22% प्रैक्टिकलिटी ही रह जाए, मतलब एकदम अनइथिकल, या 2% केवल दिखाने का हो, तो वो वैसा ही हो जाएगा कि एथिक्स की बातें वैसे कहते ना एक कि गहने जैसा हो जाएगा कि आप कोई ओकेशंस पे निकाल के उसको पहन लोगे, बोला हाँ ऐसे होना चाहिए वैसे, और बाद में उसको डब्बे में रख दोगे, सेफ में रख दोगे, और बाद में जो कहते हैं, बड़ा फेमस डायलॉग भी है किसी मूवी का है ये सीरीज़ का, कि भाई बाकी रोल्ड गोल्ड वाली जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करोगे हमेशा। जो रियल में वर्क करेगा दिखाने का और करने का, देखिए हाथी के दांत दिखाने का और करने के कुछ और, खाने का और कुछ वैसा हो जाएगा फिर, है ना। तो एथिक्स का यूटिलिटी बना रहे, एथिक्स की फंक्शनलिटी बनी रहनी चाहिए। सो लॉ में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, लीगलिटी में। लॉ अगर लॉजिकल हो तो क्या यूज़ होगा उसका, केवल लॉजिकल भी हो और एथिकल भी हो। जितने भी कानून हैं अगर लॉजिकल भी हो एथिकल भी हो, आज देखें ना आप सुप्रीम कोर्ट में ही जो चीज़ें होती है स्क्रूटनी, उसको लॉजिकल ग्राउंड पे भी करते हैं और एथिकल ग्राउंड पे भी करते हैं स्क्रूटनी उसका। तो वही तरीके से जो भी हम पॉलिटिक्स को देख रहे हैं उसमें कई बार कहते हैं कि एथिकल ग्राउंड पे आपको वो देना चाहिए रिजर्वेशन दे देना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे डीट भी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ। जैसे आप मोटे मोटे तौर पे कर रहे हैं कि आप पे अब पॉलिटिक्स में डिक्लाइन ये हुआ, जैसे एक बार लाल बहादुर शास्त्री रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, तो रिज़ाइन कर दिया तो किस लिए भाई, उनके रिजिम में रेलवे मिनिस्टर शायद थे, तो उस समय कोई एक्सीडेंट हुआ था, नाम शायद मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे नीतीश कुमार ने भी रिज़ाइन कर दिया शुरुआत में, कहीं एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार को कहा जाता है कि कितनी बार इधर इस पार्टी से उस पार्टी से एथिकल ग्राउंड पे कई लोग क्वेश्चंस करते, अपोजिशंस भी करते हैं, मतलब जिनको जो सुविधा होता है वो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो होता है ना। मैं ये कर रहा हूँ, हम किसी पार्टी विशेष और लोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए इस पर तो पब्लिक डोमेन में ही है,
इतना कि उसको चेक कर सकते। वही नीतीश कुमार जो एक समय एपिटोम थे कि भाई उन्होंने देखा एक्सीडेंट हुआ तो, लेकिन बाद में कई रेलवे मिनिस्टर कहा कि हमने थोड़ी गाड़ी में थोड़ी चला रहा था, ऐसे भी थे। तो इस तरह की बात समझ रहे होंगे आप कि दैट एथिकल चीज़ें होने से उसका जो एक पॉलिटिक्स का जो लेवल है वो हाई होगा। अगर ये नहीं है, एथिक्स पॉलिटिक्स में नहीं है, देन व्हाट वुड हैपन दैट द होल पॉलिटिक्स विल बी सो कॉल्ड डर्टी कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं। तो हम एनिमल से अलग नहीं होंगे। एनिमल किंगडम जैसे होता है ना कि रूल ऑफ लॉ छोड़ दो, रूल ऑफ पावर होगा, पावर के लिए कुछ भी करेंगे। और जो गांव में कहावत जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो ताकतवर होगा वही रूल करेगा, है ना, क्योंकि पावर गेम में जो ताकतवर है वो रूल करेगा, कुछ भी कर सकता है किसी के लिए। तो ये जो डर है ना, सबसे बड़ा रोग जो है वो जो कंट्रोल करता है हमें कॉन्सेंस को, वो कहता है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कहते हैं लोग। तो क्या कहेंगे लोग एथिकल चीज़ों पे होता है, लॉ के बारे में नहीं करते। तो वो जो सिविक सेंस होता है और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस होता है, उसकी कोई कॉन्सेंस होते हैं, वो बनी रहनी चाहिए। देन पॉलिटिक्स विल बी हेल्दी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने इसका एक एनालॉजी यूज़ किया कि जैसे गोल्ड को हम कुछ करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए, एकदम एथिकल हो जाए और कुछ उसके लिए हैंडीकैप्ड हो जाए, देन दैट विल नॉट वर्क। बट it should be functional and it should be good also, looking good also and effective also and efficient also. Understood? So in my point of view, when we talk about ethics, with politics without ethics will be a game of power. Different people will write different examples, different events or different things, बट द लॉजिकली दिस विल बी द स्ट्रक्चर कि पॉलिटिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, आप लिख दोगे। देन व्हाट वुड बी द फेस ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स एंड व्हाट विल बी द फेस ऑफ पॉलिटिक्स विद एथिक्स एंड विदाउट एथिक्स। सो व्हाट इज द वे आउट। कभी कई लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में एथिक्स करें, जैसे चाणक्य ने भी कहा और कौटिल्य ने और मैकियावेली और बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर का व्यू था। तो उसमें हमने ये कहा कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि दैट प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं हो जाए कि जहाँ पे कोई कंसर्न नहीं हो, कोई किसी के लिए कुछ सोच नहीं रहा हो, कोई दया नहीं हो, करुणा नहीं हो, कंसर्न नहीं हो। आंकड़ों की गरीबी जो है, जो कहते हैं ना कि आप नंबर्स जो देखते हैं और एक जो गरीबी देखकर जो महसूस करते हैं, कितने लोग भूखे से मर गए, ये कोई हो सकता है स्टैटिस्टिक्स हो आपके पास, लेकिन जब आप किसी को भूखे दवा की कमी से मरते हुए देखा तो उसके बाद जो फीलिंग उठती है वो हमें एथिकल बनाता है। दैट इज़ नॉट अबाउट दैट हु इज़ इन पावर। सो एक कहते हैं ना आंकड़ों की गरीबी है और एक रियल में जो देखा आपने महसूस किया। सो ह्यूमन बीइंग का जो सबसे बड़ा है कि हम जो है दूसरे को देखकर हमारे अंदर कंपैशन है वो बना रहता है। अब वो है तो हमें एथिकल बिहेवियर शो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन जब वो मर जाए तो हमारे और अंदर जानवर में कोई अंतर नहीं। तो ये बात आपको मैं एक छोटे से नोट पे छोड़ देता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड लेट्स सी हाउ you have written your essay. After evaluation, I will give you feedback and I hope you will improve. Thank you very much.